गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब स्टूडेंट्स। हम सिविक्स का लेसन नंबर 5 पढ़ रहे थे, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, आज हम उसका हमने एक टॉपिक पिछले कल पढ़ा था, लर्निंग फॉर चेंज, तो हम उसको आज कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक बताया गया है राम सुंदरी के बारे में। लेट अस स्टडी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ राज सुंदरी देवी, who was born in West Bengal some 200 years ago. At the age of 60, she wrote her autobiography in Bangla. Her book titled Amar Jawan is the first known autobiography written by an Indian woman. Raj Sundari Devi was a housewife from a rich landlord family. At that time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad lucks to her husband and become a widow. Despite this, she taught herself how to read and write in secrets well after her marriage. I would start working at dawn and I would still be eaten until behind midnight. I had no rest in between. It was 14 years old at that time. I came to nurture a great longing. I would learn to read and would read a religious manuscript. I was unlucky. In those days, women are not educated. Later, I began to reason my own thoughts. What is wrong with me? Women do not read. How will I do it? After learning the alphabetic, Ramsundari Devi was able to read the Chaitanya Bhagavati through her own writing. She also gave the world an opportunity to read about women's life in those days. Ramsundari Devi wrote about her everyday life experience in detail. There were days when she did not have a woman rest, no time even to sit down and eat. तो इसमें बताया है राम सुंदरी के जीवन के बारे में बताया गया है कि जो राज सुंदरी देवी के राज सुंदरी देवी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1800 में हुआ था, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपने आत्मकथा लिखी। सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों को विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा। 14 वर्ष की आयु में एक अभिलाषा पनपने लगी उसके मन में मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी। उस दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। रामसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। राजसुंदरी ने अपने जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा। आगे का टॉपिक है स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर गेट एज we will see there still remain differences between the education of boys and girls. India has a census every 10 years which counts the whole populations of the country. It also gathers detailed information about the people living in India, their age, schooling, what work they do, and so on. We use this information to measure many things. According to the 1961 census, about 40% of all boys and men were literate, compared to 15% of all girls and women in the most recent census of 2011. This means that the proportions of both men and women who are not able to read and have to least some amounts of schooling has increased. But as you can also see, the percentage of the male group is still higher than the female group. There are several reasons why children from Dalit, Adivasi and Muslim communities leave school. In many parts of the country, especially rural and poor areas, there may not even be proper schools, not literatures to teach on a regular basis. If a school
is not close to people homes and there is no transport like buses or vans, parents may not be riding to send their girls to school. Many families are too poor and unable to bear the cost of educating all the children's boy may get preference in this situation. Many children also leave school because they are discriminated against by their teacher and classmates just like Om Prakash वाल्मीकि वास। तो बेटा ये जो हमारा स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे इसका मतलब होता है वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में लड़के और लड़कियां बहुत संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों का अनुपात सब लड़कों पुरुषों का 40% शिक्षित था और लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। दलित, आदिवासियों और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल हैं ना ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास ना हो और ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं। कुछ परिवार बहुत गरीब होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम कल शुरू करेंगे। थैंक यू।